जो 3 साल सड़कों पे गुजारे थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नींद सोया था, उस समय प्रॉमिस किया था भगवान से कि मैं भगवान मेरे को काम दिलवा दे, मैं किसी काम को मना नहीं करूँगा. आई ऑलवेज बिलीव journey is much more important than destination. All your bad work becomes your great stories later on. मैंने उनसे कहा था कि आप फ्रॉड हैं, आप चीट हैं और आप झूठे हैं, आपने झूठ पे बनाया है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ. तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल का, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया. सिनेमा इज़ ऑलवेज द ईजी टारगेट. आई थिंक एनीबडी हु कास्ट वोट इज़ पोलिटिकल. सो ये तो फसाड हमको भूल जाना चाहिए. आई एम ए पोलिटिकल. If anybody talks about India, people think that he is in politics. Through your podcast, I want to say that I am India-centric. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders because it's too tiring and it's too boring. The innocence of coming from a small town played a very important role in my life. My biggest fear is to lose memory. हम अपनी जिंदगी में बहुत उलझे हुए हैं. And we complicate our own mind. Life, according to me, is 90% monotony and 10% excitement. ऐसा कोई एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं जिसके मैं बाप नहीं बना. मैं तो हेमा मालिनी जी का भी बाप बना था, मैं जब बहुत छोटा था उनसे. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. Many of you used to write in to say that we should get guests from other cities into our Delhi studios. It wasn't too easy. So we took our crew to Mumbai, the city that never sleeps. Today my guest is a noted film actor, Anupam Kher. Anupam Kher has acted in over 500 films. He's acted in films made in the UK, in the US, and is active on social media too. Anupam Kher is more than just an actor. He's been awarded the Padma Shri in 2004 and Padma Bhushan in 2017. So let's get on with the conversation. Anupam ji, thank you so much for coming on my podcast. I've been wanting to have you on the podcast right from when I started. So thank you very much. Of course, it's a pleasure talking to you always. And I'm in your city. So I wanted you to come to Delhi, but then next time we'll have you in Delhi. To start about, your film career, it is so hard. But more than 500 films, I think you've done, right? I'm on my 534th film. 534th. How do you keep track also? Because I think I've gone through such tough times when I was looking for work. 3 years of tough situations. I mean, I was a gold medalist from drama school. But over here, hairstyle was much more important than talent. And I was not supporting the best hairstyle. This is a very dignified, sexy, bald look. But initially, it became dignified very late. Very late. But when initially you lose, आधे इधर से जाते हैं, आधे इधर से जाते हैं. And early 80s में अगर आपको हो कि मैं एक्टर बनना चाहते हैं और वैसे लगते हो, तो फिर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी. लोग कहते थे कि आप ऐसा करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए या राइटर बन जाइए. आई डोंट नो व्हाई दे थॉट दैट असिस्टेंट डायरेक्टर राइटर्स गुड लुकिंग नहीं होने चाहिए. बट एक क्लीशे था. तो एट दैट टाइम देन आई प्रेड टू गॉड कि भाई मुझे जिस दिन काम मिल गया, मैं काम को लेके कंप्लेन नहीं करूँगा. एंड आई विल कीप ए ट्रैक. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट फ्रॉम सारांश till today. I used to write diary and I used to say आज मेरी दूसरी फिल्म है. और हालांकि सारांश के बाद मैंने एक हफ्ते में 57 फिल्म साइन की थी. Yeah. Because Saaransh was such a path-breaking film. मैं सच बताऊं, that film comes back to me at various stages in life. Yeah. It first made us aware of raw grief. मतलब बहुत सारी फिल्में थी, but at that time, as I had not experienced grief. I was like lucky, I guess. But when I saw you emote that role, it was like जो वो एक लाइन होती ना, hit in the solar plexus. बिल्कुल वो बात थी. It was because I was 28 and I was supposed to be playing this 65-year-old man who has lost his only son in America. मुझे तो पता नहीं था इतना ग्रीफ कैसे होता है. मुझे तो स्ट्रगल पता था, ह्यूमिलिएशन पता थी, लोअर मिडिल क्लास से कि बैकग्राउंड से आना, लैक ऑफ डिग्निटी क्या है. बट पेन, वो भी लॉस ऑफ सन का तो था नहीं. आई वाज नॉट इवन मैरिड व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग. But you were 29 if I'm not mistaken. 28 when I started shooting, 29 when the film released. And so I'm glad. A lot of people say कि अरे आपने पहले फिल्म में ऐसे बुजुर्ग का रोल कर लिया. I will give my left arm to be again if I was asked to do, because it established me as an actor for the rest of my life. आज भी जब
हर इंसान की कोई ना कोई मेमोरी उस फिल्म से जुड़ी हुई है यू नो. सो वो कहीं ना कहीं, बिकॉज ग्रीफ सबके साथ हुआ है. आई थिंक द वे दैट person dealt with that BB Pradhan, that was the name of my character, the way he dealt with was also gave courage. So I think at that time Mr. Bhatt, Mahesh Bhatt ji was going through a certain churning. उन्होंने अर्थ बनाई थी, उसके बाद ये बनाना चाहते हैं. और बिकॉज मुझे फिल्म से 10 दिन पहले निकाल दिया था और संजीव कुमार को साइन कर लिया था, तो मैंने विद वेंजेंस वो फिल्म की. कौन सी फिल्म से निकाल लिया? सारांश से. सारांश से? जी जी जी. सारांश से हम 1 जनवरी 1984 को उसकी शूटिंग करना शुरू कर रहे थे और मैं 6 महीने तक उसमें रिहर्स कर रहा था. आई वाज ट्राइंग टू बी दैट ओल्ड मैन. मैं धोती कुर्ता पहनकर मैं शिवाजी पार्क जाता था, बुज़ुर्गों को देखता था, छड़ी के साथ सोता था, छड़ी के साथ उठता था, और 6 महीने तक. और 20 दिसंबर को मुझे 1983 को मेरा एक दोस्त बोलता है कि मैंने राजश्री प्रोडक्शन में एक अफवाह सुनी है कि तुम वो रोल नहीं कर रहे हो अब. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी भट्ट साहब के साथ बैठा था पर कल परसों. तो उन्होंने कहा हाँ वो मैंने सुना है वो संजीव कुमार कर रहे हैं. आई कुडंट बिलीव दैट, सो आई जस्ट जोकिंगली कॉल्ड मिस्टर भट्ट फ्रॉम माई राशन शॉप बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन ए स्मॉल चॉल. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी कैंडिड एंड कैजुअल अबाउट इट. ही सेड हाँ यार वो राजश्री प्रोडक्शन पीपल डोंट वांट established, don't want a newcomer, they want an established actor, so they have taken a fantastic actor like Sanjeev Kumar, but you do the other old man's role. So this story I have told million times, but every time this story is very important lesson for a lot of people, that never give up. So, or tell people what you want to say. So when he said that, तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया. मैंने कहा this city does not deserve me. अगर somebody like Mahesh Bhatt Sahab can do something like this, then I don't think मेरा कुछ होगा इस सिटी में. तो मैंने सामान पैक किया और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था टू टेक ए ट्रेन एंड गो बैक टू शिमला और टू दिल्ली और टू लखनऊ. तो फिर मुझे याद आया, मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर. जब आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए तो आप बराबर के हैं जी. तो अब मुझे लगा कि अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ नहीं चाहिए. अब मैं उनको जाके बोल सकता हूँ कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. So I took the cab to his house and I walked up. I remember the elevator was not working. I walked up the 6th floor and he opened the door and he said, यार fantastic, तूने बड़ा sportingly लिया इसको. तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप अपने घर की खिड़की के पास आइए, देखिए नीचे टैक्सी है, इसमें मेरा सारा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ. पर जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं और सबसे बड़े झूठे हैं. मैंने कहा आप सच पे फिल्म बना रहे हैं और आपके अंदर ही सच नहीं है. एंड आई वाज क्राइंग एंड आई वाज हॉरिफाइड, आई वाज डीपली सैडन्ड एंड आई सेड कि आप कभी सच्ची फिल्म बना ही नहीं सकते हो. मैंने कहा संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं बट ये रोल मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ. और फिर हिंदी फिल्मों में होता ना, और आमतौर पे जब आप ज़िंदगी में गुस्सा करते हो तो आप एक फाइनल क्लाइमैक्स की लाइन ढूंढते हो कि मैं गुस्से को किस क्लाइमैक्स की लाइन पे छोड़ दूं. तो मुझे वो कोई लाइन मिल नहीं रही थी. तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आप फ्रॉड हैं, आप चीट हैं और आप झूठे हैं, आपने झूठ पे बनाया है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ. सीरियसली. अभी तो मैं बहुत कंपोज्ड काम तरीके से बोल रहा हूँ, बट एट दैट टाइम इट वाज आई वाज क्राइंग, आई वाज डिसअपॉइंटेड. तो फिर मैं जाके बोल के गाड़ी में बैठ गया टैक्सी में. तो ऊपर से उन्होंने आवाज़ दी मुझे खिड़की से, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा. तो फिर मैंने कहा नहीं मैं श्राप के डर से कि आपके डर से कि वो हिल गए. देन ही कॉल्ड अप राजश्री पीपल एंड ही सेड इसने इस समय मेरे सामने एक ऐसा सीन किया है कि अब तो यही करेगा इस रोल. अच्छा, दैट रोल व्हिच यू brought that up. Yes. In the collector, वो जो customs room में. नहीं हाँ, but I was genuine and he was genuine. I must say that. It takes two people to make truth. One who can say it, one the other person who can listen to it. So I can't take credit for it. Ultimately, credit goes to him because Saaransh is a baby of Mahesh Bhatt. I'm an instrument. But the fact that if I had not gone to his house, तो आज स्मिता प्रकाश जी मेरा पॉडकास्ट ना कर रही होती. यू सी, ग्रीफ हैज़ टू बी लेट आउट, अदरवाइज वो नासूर बन जाता है. वो बीवी प्रधान डिग्निफाइड था बट फिल्म का कैरेक्टर था. आम जिंदगी में ग्रीफ जो है उस तरह से, दैट्स वाई बीवी प्रधान इज़ वेरी अट्रैक्टिव.
as a person, as a personality, because he deals with a dignity. When my father died, he was my best friend. My best friend. मतलब I could say anything to him about any topic. He was my biggest admirer and my biggest fan. वो पहली प्ले से लेकर मेरे उनकी लाकड़ी पिक्चर उन्होंने उसी स्माइल्स के साथ देखी है कि मेरा बेटा क्या कमाल है. When he died, it was very strange that he unfortunately died with some strange disease which made him feel that the food is sand and the water is acid. So he starved to death. Oh, And goodness. I don't know, some weird thing was. And he was 84 and he was used to walk 10 to 12 kilometers every day. And then when he passed away, just before I had told my brother because he was living with him, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे भाई क्योंकि अगर कभी कुछ वो कहना चाहते हैं तो मुझे बुलाना. तो एक दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया मेरे भाई ने. एंड माई फादर डिड नॉट हैव द एनर्जी टू से एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग. तो उनकी छाती पर एक कागज़ पड़ा था और पेन था. तो और उनकी आंखों में एक नॉटी स्माइल थी. आई कुड गेज दैट. तो फिर उन्होंने बोला कि राजू ने, मेरे छोटे भाई ने कहा कि तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं. तो फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे देख देख के कुछ लिखना शुरू किया. और इट लुक्ड एज इफ आधा घंटा लग गया उनको कुछ लिखने में. बट आई वाज स्टैंडिंग एंड स्माइलिंग. फिर उन्होंने वो छाती पे पेपर फेंका और बोला उठाओ, मतलब ऐसे बोला बिकॉज बोल नहीं सकते थे, एनर्जी नहीं थी. तो मैंने उठाया. नाउ इज़ वेटिंग फॉर द आंसर टू व्हाट ही हैज़ रिटन. बट अनफॉर्चुनेटली उस पेपर पे सिवाय लाइनों के और कुछ नहीं है, बिकॉज ही कुड नॉट फॉर्म सेंटेंसेज. तो मैंने कहा अभी क्या इनका क्या, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर मी कि मैं क्या जवाब दूँ. तो फिर मैंने एक बड़ा कैजुअल सा जवाब कैलकुलेट, हाँ मैंने कहा ऑफकोर्स पापा बिल्कुल आप सही कह रहे हो. तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड. देन ही कॉल्ड मी टू हिज माउथ एंड आई ब्रॉट माई ईयर वेरी क्लोज. And for a person who was going to die in another 20 minutes, his last two words were, live life. So then I decided, of course I cried and everything, but then I decided I must not mourn his death, I must celebrate his life. तो हमने जो उनकी प्रेयर सेरेमनी थी उसमें हमने एक रॉक बैंड बुलाया था. लोगों को बोला कि वो सिर्फ कलर कपड़े पहने, और उनकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट्स मैंने एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन किए. And that's the only way to get over grief, when you celebrate the loss of somebody. Of course, the person has to live that life. A tragic loss at a young age, it's very difficult. But I can imagine your father's reaction at your brother's. It's not when father's biggest loss is when before him his son goes away. वो आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है. Grief is something which you have to feel. And you my know, psychologist, my psychiatrist says that. He says that कि आप महसूस करो ना, अगर होता है रो ना, रोने में क्या फ़र्क पड़ता है. but men are often told बचपन से ना कि रोना नहीं है. Be strong, be strong. I think that बहुत साल पहले की बात है जब women were not working. But your age people, my age people, my brothers, your brothers, बोला जाता था ना कि नहीं हमारे, I think that नहीं हमारे घर में तो मतलब एटलीस्ट मैंने तो किसी को सबको बोला है कि अगर फील हो रहा है, वो ये क्या है स्ट्रेंथ, रोने से क्या आदमी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है. रोना इज़ ए पर्गेशन, इट्स ए गेटिंग कथारसिस. वो जो बोलते हैं कि रोना नहीं चाहिए, आई थिंक दैट्स ए माचोइज्म अटैच टू इट, कि मर्द को दर्द नहीं होता. ऑफ कोर्स दर्द होता है, वो बर्दाश्त करता है, बट रोना इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, डीप. रोना इज़ लेटिंग गो. और वो लेटिंग गो जो है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एज एन आर्टिस्ट, है ना. You can use that sometimes as an artist because we all need to be real. Problem is in life, I know that आप नहीं सोच रही होंगी कि एक्टर से इस तरह की बातें होंगी, बट ट्रूथ है ये. मुझे लगता है कि हमारी मोस्टली प्रॉब्लम्स है that we try to be somebody else. That is why we are trying to be somebody else. We are not, my strength is if I am myself. चाहे मेरी कमज़ोरियों के साथ, चाहे मेरी खामियों के साथ कह लीजिए, चाहे मेरी खूबियों के साथ कह लीजिए. If I am myself, तो आप मेरे ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders because it's too tiring and it's too boring.
And I'm not saying it just for the effect. I genuinely don't feel, I don't like bodyguards. I don't like people helping me check in, pick up my bag and things like that. Because that's stopping me from being free. 500 role, how can you be yourself? Because in every role you become the role, ना? उसमें से किरदार में से निकलना कितना मुश्किल है, और क्या वो किरदार रह जाता है आप में? नहीं, कुछ नहीं, ये सब हमारा जॉब है. आप एक इमोशनल इंटरव्यू करती हैं, इट्स जॉब. अब आप उसके बाद, अभी आप इससे पहले दूसरे कलाकार का शो कर रही थी, आप फटाफट निकली, तैयार हुई. आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय व्हाट दैट एक्टर सेड, बट इट्स माय, ये हम जो एक्टर्स हैं ना, ये हवा बना लेते हैं कि मैं इसके अंदर घुस गया. ऑफकोर्स मेरे 534 में से 3 या 4 या 5 ऐसे रोल होंगे विच वर स्टेड विद मी. I can count them on my fingers. My first role, of course, Saaransh, because it really affected me. But it affected me also in a great way, because I all my life wanted to become that person. You wanted to become Pradhan? I what an amazing principle. गुस्सा हो जाता है, वो हो जाता है, सब कुछ. Okay. गुस्सा भी हो जाता है, but उसमें समझ भी है, उसमें धैर्य भी है, उसमें डिग्निटी भी है, वो देशभक्त भी है. सब चीज़ें हैं. द अदर फिल्म वॉज, मैंने गांधी को नहीं मारा, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग एल्जाइमर्स पेशेंट. मेरे को एल्जाइमर्स के बारे में कुछ पता नहीं था, एंड बिकॉज आई वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म ऑल्सो, और मैं उसको ऐसे तरीके से नहीं करना चाहता था कि एल्जाइमर को मैं पार्किंसंस से कन्फ्यूज़ करूँ. तो आई लिटरली स्टडीड ए लॉट, बट वो गलती होगी, स्टडी कर ली, क्योंकि उसके बाद मुझे, अब कभी कोई चीज़ भूलती है तो मुझे याद आता है कि अल्जाइमर की किताब में लिखा था कि पेज नंबर 34 पे मैं स्टेज 1 पे हूँ, मैं स्टेज 2 पे पहले बैठ जाओ. इनफैक्ट आई रिसेंटली मेट अ वेरी 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 वेल नोन न्यूरोलॉजिस्ट, जिसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है, वाई बुद्धा नेवर गॉट अल्जाइमर्स. तो उनसे बातचीत की. और तीसरी आई थिंक फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, विच स्टेड विद मी. बाकी इज पार्ट ऑफ माई जॉब. जैसे कारपेंटर अपना जॉब करता है और वापस चला आता है. कितनी इमोशनल है, कोई सीन अफेक्ट करता है आपको, बट इट्स माई जॉब टू डू दैट सीन दैट वेल, एंड दैट हैपन्स विद ओनली पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड एक्टर्स. You became a father at 49, at 29. I became a father at 29. But that's the believability, that's the joy of. कितने father roles आपने किए? ऐसा कोई एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं जिसके बाप नहीं बना. मैं तो हेमा मालिनी जी का भी बाप बना था, मैं जब बहुत छोटा था उनसे, विजय में. मैं तो श्रीदेवी, नो, बिकॉज उसका फ़ायदा मुझे तब नहीं पता लगता, अब हो रहा है, क्योंकि मैं उधर से रिवर्स में जा रहा हूँ. जो मैंने सारांश की थी तो मुझे लगता था, मेरे जहन में था, मैं 29 का था, कि 65 साल का आदमी ऐसा लगता होगा. जो आपने सारांश में देखा. अब मैं 67 साल का हूँ, मैं तो वैसा लगता ही नहीं हूँ. आप ऐसे लगते नहीं है, बट व्यूअर्स, इफ any of you are not in Instagram, please get onto Instagram just to see Anupam ji's Instagram account and see his interaction with his mother. She is amazing. If you think he has a sense of humor, please listen to his mother cracking jokes on Anupam ji, and Dulari ji's escapades are something else. It's something that'll make your day. Yeah. So tell me, so when you used to do dad roles, didn't your mother say कि ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कभी पापा का रोल होती थी, कभी परेशान होती थी, बट माई मदर वॉज ऑलवेज डूइंग थू बिकॉज उनको लगता था कि कुछ भी कर रहा है तो लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं. शी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. एज लॉन्ग एज आई वाज ऑन द स्क्रीन, that was the biggest. She used to tell your masis and your neighbors and all. No, she was no. My father was like that. Okay. मेरी मदर हमेशा छुपा के, अभी भी वो छुपा के रखती. कल मुझे वो लिफ्ट में बोलती हैं, तू ज़्यादा मत बोला कर कि मैं ये कर रहा हूँ, तूने अभी तेरा भाई बता रहा था कि तू कुछ ऐसा, तेरा काम हो रहा है, तेरा ऐसा काम हो रहा है, तेरी पिछले साल 3 फिल्में तेरी सुपर हिट हुई, मत बोला कर. कि मैंने क्यों? कहते नहीं, नज़र लगती है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर साइड, माई फादर विल टेल द होल वर्ल्ड. पहले तो अगर मैं किसी फ़ैन के साथ भी फ़ोटो खिंचाता था तो वो बीच में उसमें घुस जाते थे. ही नेवर यूज्ड टू ट्रैवल बाय फ्लाइट. वो ट्रेन से जाते थे, उनको फ्लाइट में जाने का दिल नहीं लगता था, उनको फियरफुल थे. तो वो ट्रेन में बोलते होंगे किसी को कि मेरा बेटा अनुपम खेर है, तो वो सब लोग हंसते होंगे कि अगर तुम अनुपम खेर के फादर हो, बिकॉज लोगों का परसेप्शन होता है ना, तो वाई विल यू ट्रैवल इन ए ट्रेन.
तो he will call me at 1:30, 2 o'clock in the night from some station or sometime when the mobile came from the mobile. यार मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ये लोग कोई यकीन ही नहीं कर रहे हैं. And he will make me speak to them. And then if I speak to them, then will say, हमें क्या पता तुम अनुपम खेर हो, डायलॉग सुनाओ. मैंने कितनी बार डायलॉग सुनाए हैं. My father was my biggest fan. And so all the father roles that you played, do you... They were derived from somebody. हमारी बहुत कॉमिकल फैमिली थी. मेरे फादर की साइड की फैमिली खासकर. हमारे एक चाचा जी थे, पंडित द्वारकानाथ जी, वो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे. तो 7वीं बार उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स में 9वीं क्लास में प्रमोट कर दिया था, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल वंकल बुलाने लगे ना. अब 8वीं में 8 बार फेल हो गया तो वो जैसे वो उनका नाड़ा लटकता रहता था, उनकी छोटी छोटी मूछें थी, तो दिल का जो है कौन? नो दिल है, दिल कैरेक्टर वहाँ से है. अच्छा. ऐसे बहुत सारे फिल्म है. इनफैक्ट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो बड़ा फेमस सीन है, जब मैं शाहरुख को अपने फैमिली से मिलवा रहा हूँ. फैमिली, हाँ. वो सब मेरे रिश्तेदार हैं वो फोटोग्राफ में. Really? हाँ, ये मैंने बोला कि ये दीवान ब्रिजनाथ जी हैं, दैट्स माय ताया जी. ये दीवान मोहनलाल जी हैं, ये दीवान पुष्करनाथ जी हैं, जो 8वीं में 10 बार फेल हुए थे. इनफैक्ट जब वो शूट हो गई फिल्म, तो मैं तो बड़ा खुश था. फिर जब पिक्चर का रिलीज होने से पहले हमने प्रीव्यू देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे. तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी. मैंने कहा चाचा जी, ताया जी, सॉरी मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पिक्चर रिलीज़ होने वाली है. पिक्चर रिलीज हो गई, सबके मैसेजेस आए, थैंक यू यार, तुमने हमारे को मशहूर कर दिया. तो आई थिंक द इनर सेंस ऑफ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, बिकॉज मेरे मोहल्ले में मल्होत्रा जी कैसे थे, ये सब लाइफ से कैरेक्टर मिलते थे. शिमला में आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला टिल आई वाज 19. तो ये लाइफ से ही कैरेक्टर मिलते थे. एंड यू कीप गोइंग बैक, है ना? For a long time I did not go back because after my father passed away, my mother shifted with my brother. एक दिन आज से 4-5 साल पहले मैंने अपनी माँ से वैसे ही पूछा कि आप को सब कुछ मिल गया. नहीं, थोड़ा एरोगेंटली पूछा, सब कुछ मिल गया, आप वी आर डूइंग वेल, तो अब कुछ चाहिए आपको लाइफ में, क्या चाहिए? तो आई वाज कहीं क्या मांगेगी, कुछ भी दे देंगे. हैंडबैग, रिमेंबर यू, शी डिडंट लाइक इट एट ऑल. एग्जैक्टली. शी सेड मैं शिमला में, मुझे घर चाहिए. मैंने कहा शिमला में क्यों घर चाहिए, हम तो वहाँ रहते हैं. नहीं, कहती नहीं, मैं लाइफ भर 59 ईयर्स तक मैं वहाँ किराए के घर पे रहती थी, और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा अपना एक घर होना चाहिए, सो वहाँ चाहिए. देन वी got a house, so we have a house, so where she goes there every 2 months. You know, Anupam ji, my grandmother was in her, after she got married, she was just 13 years old when she got married. Yes, my grandmother also. Yeah, and my grandfather was posted to Simla. उस time it was pre-independence, तो वो पहली बार गांव से from Karnataka Simla गई. She was wearing chappal. She had, मतलब उस ठंड में ठिठुरती हुई, she went to Simla. And you were talking about Alzheimer's. उन्हें Alzheimer's हुआ. When she was 89 years old, I took her to Simla. Wow. To see कि शायद कुछ memory, कुछ याद आ जाए. Because we didn't know, right, Alzheimer's क्या होता है, क्या नहीं होता. Because the doctors had said कि you can't stop this. कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं, you can't stop it. Of course, later things changed. I took her to Simla. And she just kept looking, and I took her to Simla Club. And मैंने articles भी लिखे थे उनकी ज़िंदगी के, how she used to be in Simla when she used to say हम लोग ठिठुर के पीछे खड़े होते थे, और जो अंग्रेज़ मेम होती थी, the women, वो bonfire के आसपास होती थी. Simla Club, you know Simla Club, right? तो वहाँ पे वो सब, they used to sit near the fire. The Indian ऑफिसर क्या जूनियर्स थे, वो ऑफिसर का ओहदा तो मिलता नहीं था, वो पीछे खड़ी होती थी. They were not allowed to go near the fire. Yes. जब the गोरी अंग्रेज ऑफिसर्स वाइव्स could went to the bathroom, powder their noses, तब ये जल्दी से आके हाथ गर्म कर लेती थी. तो मैंने सोचा कि शायद उन्हें वो याद आ जाए. So I took her there, and then she kept staring, and I thought कुछ तो बोलेंगी, कुछ नहीं बोली. She didn't say anything. And then I took her to Mall. I took her to लक्कड़ बाज़ार कि कुछ याद आ जाएगा. But कहाँ 1930s का शिमला और कहाँ अब 2000s का शिमला, वो it was a अलग ही completely different world. Yes. But I tried the same thing. Yeah. But it didn't work with Amma. You know, people talk about what is your biggest fear. My biggest fear is to lose memory. Because if you lose memory, then there is nothing that is there, na?
I feel so sad that Dilip Kumar Saab was loss of Alzheimer. memory. Yeah. What an amazing actor, amazing storyteller, amazing person with great knowledge. You could talk to him about anything in the world. वो कुछ भी डिस्क्राइब करते थे, ऐसा डिस्क्राइब करते थे कि लगता था कि वो बिल्कुल सामने ज़िंदा है. एक दिन मुझे बहुत भूख लगी थी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सौदागर. बहुत भूख थी, मेरे को 1:30 बजे भूख लग जाती है एंड आई हैव टू ईट फूड एट 1:30. बट तो हम कुल्लू मनाली में शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे कहते अभी तो, और सुभाष घई साहब ने कहा कि 2-2:30 बजे हम वो करेंगे, ब्रेक करेंगे. तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आप पहले क्या काम, आपके पिताजी कहते फल बेचते थे. तो कहते ऐसा बड़ा बड़ा सेब होता था अनुपम, ऐसा बड़ा बड़ा समझा, तो लाल रंग का सेब, आपको देखते ही उसको लगता था कि इसको कैसे चबाऊं. फिर आप उस लाल रंग को देखते थे, आप उसको पलटते थे और आप उसको अपने मुंह के करीब लेकर आते थे और फिर आप अपने दांत उसमें गाड़ते थे और दांत गाड़ते ही जैसे उसका रस जो था वो आपके अंदर जाता था. मैंने कहा दिलीप साहब बस करो, मेरे को बड़ी भूख लग रही है. बट ही हैड द पावर एंड देन दैट इमेजरी है ना, दैट अमेजिंग इमेजरी, एंड देन unfortunately he lost memory. So I think when I did मैंने गांधी को नहीं मारा, that I met lot of people with Alzheimer's and उनकी मैंने कहा मैं क्या कैप्चर करूं इनका, because एक्टिंग से थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं कि आप कौन हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो they have vacant eyes. It's not expressionless eyes also, they are vacant eyes. So I think that was You've tough. acted with some phenomenal actors. Yes. You've been very, I shouldn't say lucky, because then your Of course mother will है. say कि इन्होंने lucky बोल दिया. नहीं मेरी मदर कहेंगी तो वो भी तो लकी थे जिन्होंने मेरे बेटे के हाथ काम किया. Okay. एक दिन भट्ट साहब ने जब सारांश रिलीज हो गई और मुझे बहुत सारी फिल्में मिली, तो मेरी माँ को मैंने कहा कि चलो मैं आपको भट्ट साहब से मिलवाता हूँ जिन्होंने मुझे बनाया, जो भी है, मैं जो भी हूँ. तो वो उनके घर पे गई, तो भट्ट साहब ने ऐसी जोक में कहा कि आपके बेटे को बना दिया स्टार. तो मेरी माँ कहती उसमें कुछ होगा तभी तो बनाया, अरे वाह. वरना कितनों को बना सकते हैं आप. तो शी हैज़ दैट arrogance. But yes, I'm very fortunate to have worked not only in India but abroad also with great actors. Yeah, like you said, you were balding and you were not considered. ना आपकी वो accent थी जो Hollywood वाली हिंदी accent मीडियम है. स्कूल का था मैं. हिंदी मीडियम स्कूल के थे आप. तो आप let's get to Bollywood, Hollywood later. पहले बॉम्बे में ही जाता है. Straight after Saaransh, you did तेजाब, राम लखन, डैडी, चांदनी, परिंदा. All of them super hits. Yeah. You're acting with the top-notch actors. At that time, did you feel that like एक picture से one can arrive? I knew when I was shooting for Saaransh कि ये एक्टिंग के मामले में तो this is going to be the ultimate for many years. Not only for me but for any actor. Okay. You see, that is the arrogance an actor has if he is educated. मैंने 4 साल का कोर्स किया था, 3 साल की सड़कें कोई खाक छानी थी और मैं जानता था कि मैं क्या एज एन एक्टर क्या हूँ. और एट दैट टाइम 90% पीपल वर नॉट ट्रेंड एक्टर्स. उनके पास कहीं से पैसों का इंतजाम था या फादर मदर पैसा डालते थे और बन जाते थे. तो मैं अपने आप से झूठ थोड़ा बोल सकता हूँ कि यार ये हीरो है. एंड इन फैक्ट आई ऑलवेज फॉट दैट हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन हो जाता है, ये हीरो है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये विलन है, ये कॉमेडियन है. आई नेवर वॉन्टेड टू बी क्लासिफाइड और पुट इट इन दैट स्लॉट. सो मैं हाँ जैसे दिलीप साहब की मैं इज़्ज़त करता था, तो पहले दिन कर्मा की शूटिंग में मिला तो मैं यही देखता रहा कि इनकी पिक्चर देखने के लिए मैं स्कूल से भागा था, गोपी फिल्म. तो आई वॉज मैडली एनामर्ड बाय द पर्सन. द फर्स्ट डे व्हेन आई वर्कड विद मिस्टर बच्चन आई वॉज वेरी वेरी impressed with myself. But all the other people were contemporaries. Whether it was Shahrukh, whether it was Anil, whether it was Amir, we all started our career together. और सबका अलग स्टाइल है ना, मतलब of approaching a I think character. हीरो को थोड़ा टेंशन होता है बिकॉज हीरो को एक ही किस्म की एक्टिंग करनी होती है. एक्टर्स जो होते हैं, जो सो कॉल्ड कैरेक्टर, उन दिनों, आजकल तो हीरोज को भी अलग अलग करना है. आज को तो बहुत स्ट्रेस है सबको. It's not just romancing and But I running was around. too happy to have made it. तो मुझे वो 25 साल जो जर्नी के शुरू के मुझे याद ही नहीं है बिकॉज आई वॉज रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आई वॉज वर्किंग डे नाइट एंड आई वॉज थ्रिल्ड दैट आई हैव मेड इट. सो काम को मना नहीं किया, कोई भी काम मैंने आए. किसी भी काम को मना नहीं किया, इसीलिए बिकॉज मुझे लगता है काम से काम आता है.
आप चूजी हो जाएं और सोचें कि मेरे लिए अच्छा सा कोई काम आए. और एंड आई हैव एंजॉयड एवरी फिल्म ऑफ माइन, एवरी इनडिफरेंट बकवास बेहुदा फूहड़ किस्म की फिल्में, मुझे सब में मज़ा आया है. क्योंकि कुछ ऐसे रोल्स भी थे जो अब व्हेन यू लुक बैक एंड से अरे यार ही सच अ ग्रेट एक्टर, बट ये क्यों किया? बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी पैसा तो उससे भी मिल रहा था. हाँ, अब उससे भी किचन चल रहा था, उससे भी होता. और जो 3 साल सड़कों पे गुजारे थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नींद सोया था, उस समय प्रॉमिस किया था भगवान से कि मैं भगवान मेरे को काम दिलवा दे, मैं किसी काम को मना नहीं करूँगा. और डिग्निटी इंसान में होती है, काम में उसको अगर आप डिग्निटी के बारे में सोचने लगोगे तो काम कैसे करोगे? एंड आई ऑलवेज बिलीव journey is much more important than destination. And what is the point of taking that journey which does not have ups and downs, which does not have speed breakers, which does not have... Life according to me is 90% monotony and 10% excitement. आप यहाँ 15 इंटरव्यूज करने आई हैं, आपका इंटरव्यू 1-2 बेस्ट होगा. One of them will be this. okay. Of course, goes without saying. No, I'm just, that was a cheeky statement to make. No, why I'm trying to say that there is not a single actor, single painter, single writer, singer, any singer who can say मैंने सारी चीज़ें कमाल की हैं. किसी को भी उठा लीजिए आप, वर्ल्ड का कोई भी जिसका हर काम ही अच्छा है. बिकॉज लाइफ, आप रोज़ दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं, किसी दिन बनता है राजमा चावल या मटन करी या कड़ी चावल. Overrated. एग्जैक्टली. आप ऑफ कोर्स शिमला के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं. मेरे लिए तो दम आलू यखनी कुछ भी मंजू वंजू कुछ भी कह सकते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग माई, आई हैव एंजॉयड डूइंग दिल का डॉक्टर ऑल्सो. हाँ, मत, बट मुझे मज़ा आया. मुझे लग रहा था कि मैं हीरो बना हुआ हूँ. आज देखता हूँ तो ऑल योर बैड वर्क बिकम्स योर ग्रेट स्टोरीज लेटर ऑन. हाँ, ये भी बात है. हाँ, जो ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गॉन, आप अपने पुराने दोस्तों को मिलते हो, आप थोड़ा अपनी ट्रायम्फ्स की बात करते हो, आप उन चीज़ों की बातें करते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ, और ये ज़्यादा फिर उसमें फिसल गई, और फिर उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया था. स्टूपिड थिंग्स, दैट्स व्हाट यू रिमेंबर. तो कौन सी वो ऐसी बात थी इन फिल्म्स व्हिच यू लुक बैक एंड यू से ओह माय गॉड? देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड निगाहें. नगीना एक फिल्म बनी थी बहुत फेमस. हाँ, नगीना का पार्ट 2 बना था निगाहें, हरमेश मल्होत्रा जी ने बनाई थी. और नगीना में अमरीश जी की कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, उसका रिप्लेसमेंट था मैं. तो मेरे जहन में क्या आया कि मैं ऐसा रोल करूँगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे, बिकॉज नगीना वॉज अ बिग हिट. एंड मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा कि बर्बाद हो जाएंगे, लोग कहेंगे क्या बात है. तो मैंने हर सीन में जान डाल दी थी. और मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैं ज़्यादा, जब मैं डबिंग कर रहा था मैं सोच रहा था कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है. रिलीज़ होने से 3 दिन पहले द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्म मिस्टर पूरन चंद्राव, हु वाज हिमसेल्फ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ आखिरी रास्ता टाइप ऑफ फिल्म, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक बॉटल भेजी. मैंने तब तक ब्लू लेबल देखी नहीं थी, पी तो बिल्कुल नहीं. और उसके साथ एक नोट था, व्हाट ए परफॉर्मेंस इन निगाहें सर, सुपर डुपर हिट. मतलब ये ओवरडूइंग वाज अ हिट. उन्होंने देखी थी, अभी पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज 2-3 दिन बाद था. तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया. मैंने कहा पूरन चंद्र राव जी ने ब्लू लेबल भेजी है और उसके साथ लिखा. तो मैंने कहा अब मैं इसका स्पेशल शो रखता हूँ बिफोर द रिलीज, और मैं बुलाता हूँ अपने फेवरेट को. आई थिंक शूटिंग विद रेखा जी एंड यश जी मेरे दोस्त थे, और यश जी को बुलाया और पैम को बुलाया और किरण को. मैंने कहा आज मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने क्या किया एक फिल्म में. तो फिल्मालिया स्टूडियो में एक प्राइवेट स्टूडियो है, प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम है. तो वहाँ मैं गया. तो किरण की आदत थी कि जब वो पिक्चर देखने जाती थी, अगर मैंने अच्छा बोला तो मेरा हाथ पकड़ के जाती थी, ऐसे हाथ में हाथ डाल के. तो हम बैठे, पिक्चर शुरू हो गई, पहला सीन हुआ तो किरण ने अपना हाथ हटा दिया. और मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है, तो सुरी गलत है. मैं हर चीज़ ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ विद म्यूज़िक. जब दूसरा सीन शुरू हुआ तो किरण ने सीट छोड़ के साथ वाली सीट पे चली गई. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. और आगे वो पैम चोपड़ा जी बोलती हैं यश जी को, डार्लिंग तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है. और जब तीसरा सीन आया, इट वाज ओवरबेयरिंग, इट वाज हॉरिबल. तो मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान कोई सांप आ जाए थिएटर में
ये स्क्रीनिंग बंद हो जाए, ये ऑपरेटर का हार्ट अटैक हो जाए, पर ये कैसे रुकेगी, अभी तो बहुत फिल्म बाकी है। तो चौथे सीन के बाद रेखा जी ने कहा मेरी अर्ली मॉर्निंग शूटिंग है, मैं निकलती हूँ। was it. That was it. So because you had so ऐसा बहुत बार हुआ है. But why did he like the film so much? I think he was the distributor. He must have thought that ये second उसका हुआ क्या उस फिल्म का? वही जो होना चाहिए था. But Harmesh ji was a great person. I don't want to sort of talk about him. But this was one of the. तो मैंने 534 में से फिल्म में I am one of those lucky people. You can still count 50 films which are A class. हाँ. बट बाकी तो मोनोटनस है ना, बाकी तो काम करने के लिए. When did you decide to go into Hollywood or UK films, and you went to Bend It Like Beckham, all these movies? Or did they come to you? No. हाँ, मतलब Bend It Like Beckham had happened that way. I always have a competition with myself. Okay. I always say that यार इससे बेटर कर सकता था, इससे बेटर. तो मैंने इतना काम कर लिया था हिंदुस्तान में. I was thinking that how do I make it difficult for myself? Because शॉट दे दो, मुझे लगता है कि competency is the biggest enemy of brilliance. Okay. When you are competent, फिर आपको लगता है कि हाँ भाई क्या है, इंटरव्यू देना बताइए और आप मेरा डायलॉग बताइए, हाँ बोलता हूँ मैं, आपको करता हूँ मैं, कर लेता हूँ. It had become वैसे हो जाता है क्या? Because when you are working so much, and ऐसा तो था नहीं कि अर्थ शैटरिंग फिल्में तो बन नहीं रही थी. जो भी बन रहा था, you had needed to be part of them. But और आपकी टाइप कास्टिंग शुरू होने लग गई थी ना? Yeah, टाइप कास्टिंग. कि कॉमेडी भी, फादर रोल कॉमेडी, No. I was the first person to break the myth of typecasting. In fact, I was doing Karma also. I was doing Ram Lakhan also. I was doing Khosla Ka Ghosla also. A Wednesday also. That was such a fabulous. So I'm always very ambitious. I wanted to have some international mileage. So Gurinder Chadda was making Bend It Like Beckham, and I one day got a mail from her that I'm making this film. I think she had offered this role to, or she had kept Mr. Bachchan in her mind. For Bend It Like Beckham? For the father's role. अच्छा. हाँ, अरे ambition में क्यों नहीं हो सकता? Yeah, because that film did become a cult film. नहीं, but I mean, I can't imagine anybody other than you doing that role. That's because I did it that way. You did it very well. I can't imagine anybody else. So, हाँ, but I'm just saying that. Mr. Bachchan would have been Mr. Bachchan, if you know what I mean. मतलब वो NRI वाला role. हाँ, वो थोड़ा. Anyway, why I'm said that because मुझे किसी से फिर मैंने पता किया, दीपक नायर उसके प्रोड्यूसर थे, तो मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि I was in America, तो आप मुझे लंदन में मिल लो, गुरिंदर चड्डा ने. और जब मैं मिला तो उन्होंने कहा will you do this film? I said of course. फिर जब रीडिंग की तो मैंने कहा इसमें तो मेरी लाइनें नहीं ज़्यादा थी. दैट वाज ए हिंदी फिल्म एक्टर्स मेंटालिटी कि लाइनें तो कम है. तो मैंने गुरिंदर को कहा, मैंने कहा मेरी लाइनें कम है. तो कहती डोंट वरी, देन व्हेन द फिल्म विल बी रेडी दे विल बी हैप्पी अबाउट इट. तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल का, मुझे अंग्रेज़ी बोलने में सोचता नहीं, मैं आई थिंक इन हिंदी. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था जब मैंने अंग्रेज़ी में बोलना शुरू किया. बिकॉज आई हैड टू फर्स्ट हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करता था, फिर उसको ऐसे बोलता था कि मेरे तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है. बट दैट हैपेंड एंड देन सिल्वर लाइनिंग्स प्ले बुक हैपेंड, देन लॉट ऑफ फिल्म्स हैपेंड दैट वे. बट बिकॉज आई वेंट आउट एंड कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा. यू कैन ओनली डू गुड वर्क इफ यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट. और उसके बाद वो आपने ER भी किया वहाँ पे. ER भी किया था. ER भी किया था. और उसमें भी फिर इट्स नॉट एज इफ यू सेंट्रल रोल है, यू वर विलिंग टू डू कि कुछ भी आ जाए, कुछ अलग आए. माय एक्टिंग टीचर यूज्ड टू से इफ यू आर गुड यू विल बी नोटिस्ड. एंड वही हुआ. But for Indian actors to do it there, I mean, Priyanka Chopra has now become so successful. लेकिन मुश्किल है ना for मतलब यहाँ पे आप स्टार पावर है आपका और वहाँ जाके आपको एक अलग ही सिस्टम. यहाँ पर स्टेगनेंसी भी है ना. आप स्टार पावर बन के बैठे रहो. और मैं तो आई सेलिब्रेट फेलियर. आई सेलिब्रेट फेलियर बिकॉज मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है मैंने स्टेज पर की है, कुछ भी हो सकता है. I think that at a very young age, my father took away the fear of failure after an incident when he thought I had failed. He said, remember one thing, failure is an event, never a person. It's how you need to grow. मैं अपने कमरे में बैठा रहूँ और मैं अपने आप को तोप समझता रहूँ तो मैं क्या बंद कर सकता हूँ. I think you can only do brilliant work if you have fear of failure.
बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ओशो की कितनी अच्छी लाइन है कि इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट. तो But you worked with such successful filmmakers, Chopras, Bhatts, Ghai. You worked with the Barjatias. I mean, they wouldn't make a film without you, literally. So they were all successful people, you know. So when you are around so many successful people, it was like fear of failure. कभी नहीं आता था आपको कि क्योंकि ये सब ही successful थे. that confidence comes with education. I'm coming back to that again and again. I was always a brilliant actor. Even when I did not have work, I knew that I'm brilliant. Because मैं इतना घिस चुका था एज एन एक्टर अपने को ड्रामा स्कूल्स में. मैं पढ़ा लिखा एक्टर था. फ्रॉम स्टेनिस्लावस्की टू बर्टोल्ड ब्रेख्ट टू ऑस्ट्रोवेस्की टू एनी बुक I had a personal collection of 14,000 books. And that is, books do make you a very rich person in any field. Observation. I'm also people's person. People are my richness. So when you're doing that, then you are ready to pick up anything. And you're a good listener and observer. I've तभी seen तो that. सीखने को मिलेगा. जब सुनने ने, I'm not talking at people, I'm talking to people. Yeah. And Wait, मजा उसका. what stage did Kirron ji come in your life? Oh, she came in my life when I went to Chandigarh. She was 1 year senior to me, and she was a star. She used to represent India for badminton. She was theatre actress. She was first class first in MA. मैं तो शिमला का गांव का लड़का, तो she was just far away to even look at. But and then she married Gautam, and then when I came in 81 on the 3rd of June 1981 to this place, I came to know that Kirron is staying here, and we became very dear friends. She was already a mother by then. She had Sikandar at that time, and Sikandar was already there, and she wanted to do theatre, and we did theatre together with Mr. Gargi, and then and we remained friends for a long time. And then when she had issues with her marriage and I was ditched by somebody I was going with, then things became different. So we have known each other now for the last 45, 46 years. Your career trajectories went parallel to each other, and I think it's Kirron, never pulled the other person down, है ना? I think that's you have to have a mutual respect for each other. I think when you marry your best friend, that thing stays. One is, in any relationship, the mutual respect should stay, and you should not say something to each other which is below the belt. Because She's a fabulous actor too. she's an amazing actor, but she concentrated for many years. I always tell her that you should have worked more, but she, keeping her amount of films that she did, she's phenomenal. Yeah. It's like one can't imagine a movie without, like a Shah Rukh doing a role without you playing his friend or dad or whatever. And you can't imagine any mom who's a Punjabi mom doing anything. Yes. Kirron Kher is her. She became popular with those, but her body of work, whether it was in so much Devdas, more. That's true. Khamosh Pani, so much more. But she's very good. But you dabbled in politics a little bit. India Against Corruption में आपने start किया. आप ideologically you're closer to the BJP than any other party. She actually took it forward. She's fought elections. She took it forward. लेकिन आप I think there is a misconception that I think if anybody talks about India or anybody speaks his mind, people think that he is in politics. India Against Corruption was not a political movement till it became into Aam Aadmi Party or something like that. I participated in it very, very, very aggressively and very in a forefront manner because I felt that it was a great platform. Unfortunately, it turned into a completely different thing. That's a separate issue. But it was a great platform. You moved away as soon as... Yes. Because when Anna Hazare was in that meeting where they were making a decision whether they should become political, Anna Hazare was sitting next to me. And he wrote on a piece of paper, on a copy, and he passed it towards me. Us pe likha tha no. So, and whenever there is a
issue which is happening, if I talk my mind out, people think that it's a political issue. As far as you saying that I'm ideologically, no, ideologically I'm an Indian, and my first interest is India. And now if the present government thinks more about India, then automatically I can be associated with them. But if I wanted to join a political party, I would have joined it. Jesse Kiran Bedi also, I had her on the podcast, and she also was in India Against Corruption, and she said कि जब वो when केजरीवाल decided कि मैंने politics करनी है और उसको political लेके जाना है, मैं हट गई. लेकिन वो फिर she went on to the BJP. Yeah. She tried that, but then she said कि मैं politics नहीं करूँगी. That was her understanding with अरुण जेटली कि मैं politics नहीं करूँगी. मेरी expertise है administration. मैं वो करूँगी, पर मेरे से politics नहीं होता. And that didn't work. क्योंकि या तो आप completely या तो आप politics में पूरी तरह से जाइए, because it's a commitment. या फिर ना. I like acting very much. I love acting, and I think I will continue to do that. But we never know tomorrow what can happen. Because किसी भी चीज़ का, मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो सकता है. But as far as through your conversation with you and your podcast, I want to say that I am India-centric. If people want to confuse that with any politics, that is their problem. I am born, I'm 8 years younger to my country. I was born in 1955. India was born in 1947. I lived, my prayer in the school was सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. I lived in a city where Western Command headquarters were in Shimla. I grew up, I was there when 65 war happened, 71 war happened. So I know what it means to be नया ताज़ा हम आज़ाद हुए थे. हमारे दादा बाकी लोग जो थे वो पार्टिसिपेट कर चुके थे. So I can understand if people today who are born in free India, they are born in free India. They do not know. I came from that point of that. हमको तब भी स्टोरी सुनाई जाती थी. देश कैसे आज़ाद हुआ, हमको तब भी भगत सिंह के बारे में बताया जाता था. तब भी हमको राजगुरु, गांधी, इन सब के बारे में, नेहरू, सब के बारे में बताया जाता था. तो मेरे थॉट प्रोसेस हुआ है. मेरा थॉट प्रोसेस इज इंडिया को लेकर है, एंड आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट इट. या यू वेयर योर पेट्रियोटिज्म वेरी क्लियरली कि कुछ भी आपको उसमें मेरे को उसमें कोई सटलिटी की ज़रूरत नहीं है. या अगर हमारे पासपोर्ट में सेकंड कॉलम है नेशनैलिटी, तो मैं उसको एक्चुअली सीरियसली यू लिव इट, है ना? ऑफ कोर्स. पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में है दैट सटलिटी कि ऐसी बातों को थोड़ा सा पीछे हट के, क्योंकि वो यू कैन रफल फेदर्स. I think anybody who casts vote is political. Because when you are going behind that curtain and you are putting a stamp, you are putting a stamp for a party or an individual, and that individual belongs to. So ये तो फसाड हमको भूल जाना चाहिए. हम apolitical. सब इंसान जो भी वोट देने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल हैं. उनकी एक आइडियोलॉजी है कि मैं इस पार्टी के साथ हूँ, या मैं इस पार्टी के साथ हूँ, या उस पार्टी के. तो वो एक्टिंग कर रहे हैं कि अब मुझे तो कुछ नहीं पता. बकवास है वो. बिकॉज या तो आप वोकल नहीं हैं. अब हम आई कैन अंडरस्टैंड आप वोकल नहीं हैं. एंड आई थिंक बिकॉज एक्टर्स हैव a fan base, people base, and in today's time it's easily can be misconstrued. It can easily get into issues. वरना पहले भी थे पॉलिटिकल लोग थे. देयर आर सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल, देवानंद साहब, विजयानंद साहब, इस तरह के लोग थे जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ थे और ओपनली थे और साथ में काम होता रहता. पर अब नहीं होता. बिकॉज अभी everybody is vocal about it on social media. Everybody has groups. Everybody has this kind of a thing. So you can upset people if you are vocal about it. और blowback बहुत strong हो जाता है nowadays with this boycott trend जो start हुआ है. What do you have to say about this? I personally feel that इस ट्रेंड से फिल्म को कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो आपकी फिल्म चलनी ही चलनी है. अगर आपकी फिल्म बुरी है तो फिर उसको असर पड़ेगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड्स. इससे हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो देन एवरीबडी हैज़ दैट अभिव्यक्ति की आज़ादी. नहीं, पर तोड़-फोड़ भी तो कर देते हैं. दैट्स रिडिकुलस. वो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए. नहीं, वायलेंस तो किसी भी नाम पे नहीं अच्छी होनी है जी. वायलेंस तो किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है.
जैसे आमिर खान की पिक्चर निकली थी, there was this whole thing, boycott, and he went into a depression also, I'm told, because he felt so bad that it was so rejected. Without even seeing the film, people rejected it. नहीं, ऐसा तो नहीं है, पिक्चर तो देखने के बाद ही होती है. नहीं, बट ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक, यू सी, द पॉइंट इज दैट वी हैव ऑल स्टार्टेड आवर कैरियर्स टुगेदर. वी हैव ऑल फॉन्डनेस फॉर ईच अदर. We have all fondness for, if an actor or an actress or a film person has the right to say anything about any situation, then he or she should be also brave enough to sort of go through the situation. If Lal Singh Chadda was not a great film, if it was a great film, no power would have stopped. उनकी जो पीके फिल्म थी वो बहुत अच्छी चली थी, सब फिल्में चली थी. The point is that you need to learn to accept the truth. ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता. अब कश्मीर फाइल्स के लिए कितनी ऑपोजिशन थी, कितनी ऑपोजिशन, आज तक ऑपोजिशन है. एलिजिबल हुई है ऑस्कर के लिए, 25 लोगों ने फैक्ट चेक्स करने शुरू कर दिए हैं. तो फिर तो रोते तो फिर तो सभी इंसान रोना शुरू कर देंगे. आपने भी तो ट्वीट किया था ना. हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. If it was a bad film, just because of its theme, it would have not done well. It is a brilliant film. It's one of the finest films-wise made in our country. I will openly say that after 50 years, when the history of Indian cinema will be talked about, they will say films before Kashmir Files and film after Kashmir Files. Not only because of the cause that it talked about, but also because of the language and because of the artistic brilliance of the film. Film is based on truth. इसको आप deny मत करिए. You did Accidental Prime Minister. It is one of my best performances. So that's what I wanted to know. How did you feel doing that role? Very difficult. I had first said no to the film. जब मेरे पास आए थे मैंने कहा बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकता. और फिर मैंने ये भी कहा था कि यार इसमें भी लोग सोचेंगे कुछ पॉलिटिकल मैं बातें कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे की सरकार थी, उनके बारे में बातचीत करते थे. बट फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा. तो उन्होंने कहा दे हैड स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अदर एक्टर. देन वन डे आई वॉज वॉचिंग न्यूज़ एंड इन दैट न्यूज़ आई सॉ डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉकिंग. तो ऐसे ही मैं खड़ा हो गया डिनर करने के बाद. मैंने कहा देखता हूँ ये कैसे चलते हैं. आई कुड नॉट डू इट एंड आई सेड यार ये तो बेस्ट चैलेंज है फॉर मी एज एन एक्टर टू डू दिस, बिकॉज हिज वॉइस इज़ डिफरेंट, हिज गेट इज़ डिफरेंट, he does not have a particular way, and the way he is, it's going to be difficult. So it took me 8 months to master voice kind and of walk the voice and walk, and 8 months and 2 months of speech therapy, speech workout. And people just rejected it. They did not say it boycott, but they boycotted it. The reviewers said 0 review, 1 star, it's an agenda film. तो वो जब करें तो कमाल है, जब बाकी लोग उनके लिए करें तो अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए. डोंट प्ले विक्टिम कार्ड ऑन दैट, प्लीज डोंट डू दैट. दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं. आप यू थिंक दैट ऑल दिस रेटिंग गेम्स जो हैं ये सारी मोटिवेटेड होती हैं जो स्टार्स मिलते हैं फॉर द फिल्म? नहीं, आई थिंक दिस इट्स अ क्लीशे थिंग टू से, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स द ऑडियंस which decides the rating of the film. In fact, in today's time, पिक्चर शुरू होती है 10 मिनट के अंदर मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं, भतीजे के, मामा जी के, चाचा जी के, किसी के भी. ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. देयर समबडीज सन, देयर समबडीज ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल. ठीक है यार फिल्म चलेगी यार, नहीं यार मज़ा आ रहा है. तो जो फिल्में चल रही हैं अब, वेदर भूल भुलैया हैं या आलिया की फिल्म है या कोई और फिल्म है या कश्मीर फाइल्स हैं, वो मेरिट है. और फिर हम ऊपर से फिर जो नहीं है फिल्में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि ये फिल्म अच्छी OTT के लिए what do you have to think? Do you think that it's a fabulous thing? Because now people are saying that there's too much of violence and sex, and it's changing the way people are thinking, living their lives. We've always blamed the system or blamed the films for everything changing. Cinema is always the easy target to attack.
there is so much material available on your mobile phones today without it being something. There are so many things. I'm on all social media. Sometimes I get horrifying reels made of nudity, of sex and things like that on a social media platform. People are making it necessarily. आप filters अपने mind में लगा के I think the censorship should be at home. हाँ. At home, you need to decide what is to be seen and what is not to be seen. But it's given a platform for so many young actors. Amazing. No, amazing. It is a great creator of jobs. It is the best thing that has happened. It's the stories which were not told. I yesterday saw Trial by Fire. It's one of the finest shows that has been made. Nobody उपहार ट्रेजेडी को, क्योंकि लोगों की मेमोरी कम होती है. Yeah. कितनी खूबसूरती से, कितनी पेनफुली वो स्टोरी बताई गई है. Another incident which shook a nation, but nobody wants to learn from it. मतलब अभी भी fires होती हैं ऐसे ही. You know, अभी भी people are not culpable, they're not found. वो cases चलती रहती है and nothing happens. People don't learn from these experiences. So these stories have to be told again. It has to be told. I think forget that also a part story has to be told. Look at the jobs it has created for directors, producers, actors, actresses, technicians, cameramen, sound recordists, storytellers, writers. It is amazing. And we are, with changing times, we have to change. There were millions of sources of entertainment now. There were not many earlier. अब आप मॉल में भी जा सकते हैं, आप अलग जगह खाना भी खा सकते हैं, आप सिनेमा हॉल भी जा सकते हैं, OTT भी देख सकते हैं. Yeah. But in the last 2 years when the pandemic happened, I think the world changed. Yeah. And with that change, the mentality, the thought process of the audiences. People went through their personal traumas. People went through their personal fear. They went through fear. They went through, and something changed. Now they don't like anything which is fake. You see, exaggerated is fine. Exaggerated form में दिखा रहे हैं, वो believable है. But वो entitlement वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते. भाई आप हमको छोटा मत महसूस कराओ. हम जैसे भी, बिकॉज उन्होंने डेथ भी देखी है, उन्होंने बीमारी भी देखी है, उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल पे फियर देखा है. हमने कभी सोचा था जब हम मंगल पे जाने की सोच रहे हैं कि एक छोटा सा जो है वायरस है वो पूरी दुनिया को बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे ला देगा. So we have to tell stories. I think that the reason that are certain stories which are working well today is because people connect with it. They, in that time, during that lockdown, they saw world cinema, they saw regional film, they saw Malayalam, Telugu, Tamil films. तो उनको लगा यार ये stories कहीं ना कहीं relate कर रही हैं. Filmmakers also are waking up. And you have to fight your own battles. जी, मैं पहले नहीं ऐसा सोचता था. पहले ऐसा नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में. Unfortunately, it's sadly, it is there now. Everybody is fighting battle. Yeah. I used to feel यार इतनी कामयाब फिल्म है, क्यों नहीं किसी एक्टर ने इसके बारे में ट्वीट किया यार कि देखो यार, क्यों नहीं किसी एक्टर ने कहा कि मैंने पिक्चर जाके थिएटर में देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी. क्या 350 करोड़ जो कश्मीर फाइल्स ने कमाए हैं, क्या वो उसने इंडस्ट्री के लोगों को जॉब नहीं दिया, क्या उसने होप नहीं दी? तो तकलीफ हुई मुझे. फिर मुझे लगा कि मे बी दिस इज़ द वे एवरीबडी हैज़ टू फंक्शन. This is the way one should do that. But that, I'm not saying I'm holier than thou, but that does not stop me from praising somebody's work. I am not for boycott trends, not at all. But you can't stop somebody from doing what they want to do. But if your product is good, it will find its audience. In fact, they will go with vengeance. And they will, the only way to kill this trend is to make brilliant work. Okay, before I wind up, I have to ask you about this fitness regime that you have started. You've become very much of somebody to be admired, that at one point of time you said, I'm going to get fit and fine. Yes. And amazing videos that you put on Instagram, you put it on Twitter also. And so tell me, at what point did you think, ab mujhe karna hi hai apne aap ke liye? So when I became 60,
जैसा कि आपने बोला अंग्रेज़ी फिल्मों का था, मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर कोई चेंज लानी चाहिए. Now I want to live the rest of my life differently. I want to go higher than what I have already achieved. नॉट कि किसी ने आपको बोला, नहीं, अपने नहीं. आप में ही. नहीं, मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त अनिल कपूर रहते हैं, वो फिट हैं, वो करते रहते हैं दौड़ भाग. वो तो पता नहीं क्या है, वो मिरेकल है वो. करेक्ट. हाँ. तो मैंने कहा तू एक दिन टूट जाएगा. तो वो है. बाकी कोई भी चेंज लाने के लिए आपको खुद अपने आप सोचना. तो मैं कॉन्शियसली जब 60 पहुंचा, मैंने कहा द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी फर्स्ट नंबर 1 a happy person, more happy. I'm always a happy person, but I also want to be a different person. But difference will only start if I physically look different. So then I got into this fitness regime, started walking, working out. फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें इंटरव्यू में लोग मुझसे डिफरेंट सवाल पूछें मेरी फिटनेस के बारे में. हाँ, चलिए. आज आपने मुझे कामयाब कर दिया उसके लिए. बट इट्स अ ग्रेटेस्ट फीलिंग. इट्स फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस. आई थिंक व्हेन यू आर फिट, व्हेन यू आर वर्किंग आउट, it also makes your mind fit. You think right. You are calmer person. Okay. Because there is so much. It's a distraction. First of all, that 1 hour needs your complete concentration. It deviates you from other stupid nonsensical things. अभी मैंने पिछले 36 दिन से मीठा नहीं खाया. It also gives. मैं मर गया, बर्बाद हूँ, मैं बिल्कुल इसके लिए प्राउड नहीं हूँ. But it also gives you to test your tolerance levels. 36 दिन हो गए हैं और मैं रोज गिन रहा हूँ और मैं सोचता हूँ आज नहीं खाता, चलो कल खा लूँ. मदर डजंट से कि थोड़ा सा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बहुत परेशान है कि मैं पतला क्यों हो गया हूँ. कहती मैंने कहा मम्मी मैंने मीठा खाना बंद कर दिया. कहते तुझे डायबिटीज तो नहीं हो गया बेटा? मुझे बता नहीं रहा. और खुद अपने बारे में बोलती है, इतना पतीसा भर भर के दोनों मुंह में गालों में भर के आई. और मैंने कहा क्या कर रही हो दोनों, इतना खा रही हो? कहती मेरे को डॉक्टर ने बोला इस उम्र के बाद कुछ नहीं होता है. Okay. So I think the fitness is a great feeling. It's a great thing. I like to see. My first thing is that I check my weight. It also makes you eat the right thing. Right thing मतलब क्या खाते हैं आप फिर? कि क्या, अच्छा क्या नहीं खाते? जैसे अपने आप ही आपको तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत पसंद करता हूँ खाना. मैं समोसे नहीं खाते? अवॉइड करता हूँ. अभी मेरे भूख में पानी आ रहा, बट खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा. हफ्ते में एक बार खा लो. बट घर का खाना मैं बाहर भी खाता हूँ बहुत ज़्यादा. इट मेक्स यू. आई वेंट टू, आई हैव सीन यू ईट इतना सा दाल चावल, दैट्स इट, और हरी सब्जी. और आई ऑल्सो वेंट थ्रू, एंड दिस इज ऑल्सो टू प्रमोट आयुर्वेदा, yoga, both the things, unbelievable things. I went to an Ayurveda center in Kerala and for 14 days, and that changed my life. Okay. मतलब उनकी शक्लें जो फोटोओं में होती है, खाने की शक्लें बड़ी अच्छी होती है, पर यू कांट ईट दैट काइंड ऑफ ए थिंग. बट द वे दे गो थ्रू एंड प्योरीफाई योर सेल्फ इज फैंटास्टिक. ओके. सो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतनी सारी चीज़ें कमाल की हैं जो बाहर पेटेंट हो गई हैं. हल्दी की चीज़ें हैं, नीम की चीज़ें हैं, आंवले की चीज़ें हैं. ये कमाल की चीज़ें हैं. We just have to. So you do your physical fitness and you are your I'm exercise conscious of my, and what you eat. And I walk and I do yoga. Okay, so that's your physical part. Now you tell me, you said you've decided at that point of time I'm going to be a happier person. तो आप mental fitness के लिए क्या करते हैं? मैं अपने आप को सीरियसली नहीं लेता हूँ. मैं सोचता हूँ, एंड मैंने आपसे सारांश के बारे में बात की ना, तो शूटिंग से 5 मिनट पहले पहला शॉट होने वाला था. मैंने भट्ट साहब से पूछा कि अब तो भट्ट साहब शूटिंग शुरू हो रही है, गिव मी 1 वर्ड विच इज़ द डोमिनेटिंग क्वालिटी ऑफ बीवी प्रधान. उन्होंने 1 सेकंड के लिए सोचा, बोला कंपैशन. सो आई थिंक फ्रॉम अदर पर्सन's पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट मेक्स मी हैप्पी. And my father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. If you make somebody happy, it will make you happy. It's not easy. It is. Really? It is. You just have to listen and give a patient hearing to the other person. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझे हुए हैं. And we complicate our own mind by thinking. My grandfather used to say, because I've lived in a joint family for a long time, that's why I remember these lines that my grandfather used to say, don't go through a problem twice. Once by thinking about it, once by going through it.
तो ये कुछ नहीं है. ये जो कट द क्लटर आजकल बोलते हैं वो उस जमाने में they knew. हाँ, अब हमने नए नए वर्ड्स इनके बना लिए हैं. बट बात तो ये होती थी ना कि क्यों सोच रहे हो इसके बारे में. आई थिंक हम ये बहुत सोचने लगे हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है. एंड दैट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टू अस. एंड ऑल्सो आई थिंक पीपल हु प्रिटेंड डोंट लाइक देमसेल्व्स. आई लाइक माई सेल्फ, सो आई डोंट वांट टू प्रिटेंड. That's a wonderful note to end this conversation on. Thank you so much for coming on the show. Always a pleasure. It's always, I think, good interviews are like cathartic interviews. They're like sessions with your psychiatrist because you speak out your mind. Did you do that today? Absolutely. Thank you so much. Thank you, Anupam ji. Thank you. Thank you for watching or listening in to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.